scrolling through the cat videos and social media. क्योंकि एमडी कैट में आंसर लाना मसला नहीं है। Hello, everyone, and welcome to another episode of Pre-Med Podcast. I'm your host, Aisha Ahmed, and I'm currently an associate at Marangal MBBS Education. I am currently a student of fourth year MBBS, too old for you guys to guide about the MDCAT, the beast itself. But I'm still here. I'm from Dow Medical College, Karachi, and I gave my MDCAT in Balochistan in 2019. So, in this episode of the series of the Decoding the MDCAT, we are going to talk about what resources are we going to use, or what mistakes students usually make, or आपकी timeline क्या होनी चाहिए MDCAT की with our very talented speakers. And I'll give you a brief overview of HEC as well along with the MDCAT. HEC का भी exam MDCAT के साथ ही होता है. It's a different exam obviously, but you have to pass MDCAT to be able to sit in the HEC exam. Or HEC, it gives you seat all over Pakistan, around 200 seats. It's dynamic, it changes everywhere. So I have my co-host Samir Tariq here. On to you, Samir. So, Assalamu alaikum everyone. My name is Samir Tariq and I'm your co-host for today. I'm also an MBBS student and an intern at the Merangal. So, this episode is very special as we have very two talented speakers from the reputable universities who not only ace their exams in their respective district, but in the overall Balochistan as well. So, join me in welcoming Mariam Ahmed and Abdul Moiz. So, guys, can you please introduce yourself? Over to you, Mariam. Hello everyone, I am Mariam Ahmed from Dow Medical College. I did my schooling from Garrison Academy, Quetta. I am still in shock because I'm still trying to process that I secured 174 marks in BOMHS MDCAT and topped not only my district but entire MDCAT. So it is really grateful to be here and being able to share my story with you, and I might be able to inspire and help some of you out there. Okay, so Abdul Moiz, over to you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज है। मैं कोयटा का ही रिहायशी हूँ और मैंने मैट्रिक फेडरल बोर्ड से किया और 907 मार्क्स लिए। एफएससी मैंने बलूचिस्तान बोर्ड से की, 1043 मार्क्स लिए उसमें। उसके बाद एमडीकैट में अपीयर हुआ और 171 स्कोर किया। ओवरऑल बलूचिस्तान में थर्ड पोजीशन थी और आई गेस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट थी या सेकंड होगी। एमडीकैट वाला पीरियड बहुत टफ था और बहुत कंफ्यूजिंग था। तो आज के पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं, जो उनकी जो क्वेरीज हैं और कंफ्यूजिंग है, उनको कुछ पाथवे मिल सके और कुछ हेल्प हो सके उनकी। So that's great, guys. Moving forward to this podcast, as we all know कि MDCAT बहुत ही challenging और competitive exam है जो कि सारे pre-med students देना होता है before going on to their dream universities. Before diving deep into this MDCAT podcast, I would like Mariam to give an overview on how this MDCAT in Balochistan is different from other provinces. Like उसका syllabus किस तरह different है, its test pattern and subject-wise MCQs का weightage कितना होता है. So Mariam. So BOMHS MDCAT is highly competitive. On the scale of for the difficulty scale, I can rank it on 7 out of 10. So last year, about 9,000 students applied and only the passing percentage was 23%. That was very less as compared to any other province. The paper pattern that is similar to other provinces, that is 200 MCQs in total with 64 MCQs of biology, 54 of chemistry and physics each. There are 18 MCQs for English and 6 MCQs for logical reasoning. Also, the positive point is that there's no negative marking. So you can also always can be guessing any of the MCQs when you're not having the idea of what the answer is. So Abdul Moiz, can you give an overview on कि अभी 2024 का जो सिलेबस है, how is it different? या अभी कोई new changes आए हैं या वही 2023 वाला सिलेबस फॉलो हो रहा है? अभी तक ऑफिशियल 2024 में सिलेबस तो नहीं आया, मगर काफी रिसोर्सेज यही बता रही हैं कि 2023 वाला सिलेबस ही होगा। तो शायद कुछ 19-20 चेंजेस, माइनर चेंजेस हों उसमें, मगर ओवरऑल जो देखा जाए लास्ट टाइम जैसे था वैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट। जिसमें बायो के जो है 13 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं एफएससी के, केमिस्ट्री के 19 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और फिजिक्स के भी 13 हैं। तो इसमें सबसे वास्ट पोर्शन जो है वो मतलब वेटेज वाइज बायो है, मगर सिलेबस काफी लेंथी है उसका केमिस्ट्री का अगर देखा जाए। तो बाकी सेम ही है जैसे लास्ट ईयर था। Okay, perfect. So now moving on forward to our next question, that is the big elephant in the room, or I think ये सबका most common question होता होगा सारे pre-med students का कि एक pre-med student को अपनी preparation कब start करनी चाहिए, और what would you guys suggest कि कब करनी चाहिए और आप लोगों ने कब अपनी preparation start की? So Mariam. So I do believe that when a person enters or takes the first step for their FSC is the time they should start their MDCAT preparation. It is the point where the concepts are being formed.
Actually, the concepts that are being formed in FSC usually acts as the bricks, and then the 2 months period that is just for the MDCAT preparation, that can consider as a seaman putting all the bricks together. So if I can say that 2 versus 2 rule, that is 2 years of FSC is for like concept formation, and then the 2 months for MDCAT preparation is just for like revision and for reinforcement and MCQ practice. ओके, आई वुड रियली मतलब इस पे मैं भी एग्री करूंगा कि मैंने भी जो अपने टाइम पे एफएससी से ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन एंड दे दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट. सो अब्दुल मोइज, व्हाट वुड यू हैव टू से ऑन दिस पार्ट? जी इसी तरह है बिल्कुल। और असल में जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो हमारी मैट्रिक से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हम मैट्रिक से ही सही तरह लेकर चलते हैं सब सब्जेक्ट्स को, तो एफएससी में आकर भी हम लोगों के कॉन्सेप्ट, जब बेस अच्छी होती है तो कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं। उसके बाद जो 2 महीने का या 2.5 महीने का टाइम है आपके रिजल्ट से लेके एमडी कैट तक, उसके अंदर इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ उस को एमसीक्यू ओरिएंटेटेड करना है। सिर्फ जो आपने पीछे पढ़ा है खाली कि उससे अभी एमसीक्यू किस तरह बनते हैं, और आप पहले जो है लॉन्ग और शॉर्ट इस तरह फॉर्मेट में चल रहे थे, अभी आपने एमसीक्यू किस तरह करने हैं और वो किस तरह प्रिपेयर करने हैं। तो खाली यही डिफरेंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है जो एफएससी में होता है, और बस यही ओके, इसके अंदर प्रैक्टिस फिर आप स्टार्ट कर देते हैं या अपनी। तो सही है. बस प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने एमसीक्यूज की. बस या आई वुड टोटली एग्री टू दैट. सो आयशा, वुड यू लाइक टू टेक ओवर? Yes, thank you, Abdul Moiz and Mariam. Very great insight. अच्छा, I'll tell you guys a funny incident जो मेरे साथ हुआ था 2019 में, जब मैंने अपना बलूचिस्तान का MD-CAT दिया था, और उसी से मुझे याद आया कि रिसोर्सेज अपने पहले से सिलेक्ट करना, दे आर सो इम्पोर्टेंट. हमारा जो MD-CAT था, इट वाज सपोज टू बी कंडक्टेड बाय BMC. ऑब्वियसली इट्स द ओनली यूनिवर्सिटी इन बलूचिस्तान. लेकिन व्हाट हैपेंड कि हमारा MD-CAT इट एंडेड अप बीइंग मेड बाय UHS, और हम लोगों ने बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स पढ़ी एंड द पेपर केम फ्रॉम पंजाब बोर्ड की बुक्स, एंड वी वर ऑल सो डिस्ट्रॉयड ऑन दैट डे. सो I'll talk a bit about the resources. जैसे कि मरियम said, बायोलॉजी का सबसे ग्रेटेस्ट पोर्शन होता है, एंड ऑब्वियसली इट्स जस्ट कि बायोलॉजी का सबसे ज्यादा पोर्शन हो, और अगर आपकी बायो अच्छी है सो यू विल एस द MD-CAT एज वेल एज योर फर्स्ट ईयर ऑफ मैथ स्कूल एज वेल. तो अब्दुल मोइज, व्हाट वुड यू से कि बायोलॉजी के कौन से अच्छे रिसोर्सेज हैं जो आपने यूज किए? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम एंडेड अप, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंडेड अप शोइंग ऑन द एग्जाम? बलूचिस्तान में जो टेस्ट दिया उसके लिए मेनली बलूचिस्तान की ही बुक्स यूज की। बाकी बुक्स भी देखी थी, मगर ये बेहतर लगी मुझे ज्यादा उनसे। और दूसरी ये बात कि अभी क्योंकि बम्स बनाता है टेस्ट, तो मेन फोकस जो है वो अपने बोर्ड की बुक्स पर ही होता है। उसके अलावा कुछ प्रिपरेशन बुक्स भी यूज की, और बस बायो का यही है कि रीड करते जाएं उसको बार बार, और क्योंकि काफी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रटे वाले होते हैं। अभी काफी ऐसे सवाल आए भी थे एमडी-कैट में जो मैं गलत करके आ गया था, कि नोबेल वेरी प्राइज ट्रू. किस सन में मिला, और ये इस तरह के सवाल जो हैं वो आप जब रीडिंग करेंगे बार बार बायो की, तभी वो सवाल आप सही तरह हल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आपको चाहिए हो यूट्यूब पे, तो मैंने डॉक्टर हादी और बायोलॉजी गार्डियन ये 2 चैनल्स यूज किए थे, तो वो अच्छी एक डायरेक्शन दे देते हैं आपको, दिमाग में चीज बैठ जाती है। बाकी उसके अलावा मेन बस जो है अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं बलूचिस्तान बोर्ड की। How do you personally liked it? Questions आपके लिहाज से इजी आए थे, टेक्स्ट बुक से आए थे, रेलेवेंट आए थे बायो के? नहीं, रेलिवेंट थे, मगर क्योंकि 64 क्वेश्चंस इन्होंने पूरी बुक से बनाने, अभी उन क्वेश्चंस की तुक नहीं बन रही थी कि नोबेल प्राइज किस सन में मिला। मतलब वो एक बच्चे की कॉम्पिटेंसी नहीं बता सकता वो सवाल। तो कुछ सवाल इस तरह के थे, बाकी ठीक था, कॉन्सेप्चुअल था टेस्ट। मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था। I totally agree with you. एग्जाम इज टोटली डुएबल. बहुत एक परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, यू फील लाइक यू वोंट नो देम और एवरीवन इज गेसिंग देम, तो दे आर रॉन्ग फॉर एवरीवन, सो डोंट वरी अबाउट देम. अच्छा, सो another subject that I hated the most, can you guys guess what it was? Definitely chemistry. Chemistry. I hated chemistry. So, acha, to Mariam, I would like to ask you, because you have gotten like chemistry mein you have gotten really good score. So chemistry mein equations or organic inorganic chemistry, how did you do with that? तो आपकी क्या strategy थी? What resources did you use? और what was the exam actually like? Exam में कैसे chemistry के questions आए थे? So basically, I used various different sources as well as various methods to study. So talking about resources which I used, first of all, obviously my textbooks. Then there were some preparation series books. Also, I used Medangle for study guides. How I studied and method. So first of all, it was the active recalls where I was
able to recall the concept like after every 2 to 3 days. Then also I used to write every equation and formulas and that mapping in your mind in order to visualize each and everything. Then another thing I used to do was to teach someone, like a friend or maybe someone in the family, that would help me to memorize things. And obviously, at last but not the least, the practice that makes everyone's perfect. Totally. So questions, you have to do a lot of practice MCQs, और जब आपको MCQs easily available हो, that is better. Marangal Premier is totally free, having all the mocks, और वो आपने try किया है. So Yeah. how was your experience if you described it in one word? Amazing. Okay, so now physics, if we talk about it, तो physics is similar, somewhat similar to maths. थोड़ी सी इसमें calculations होती हैं, derivations होती हैं, equations, and I did not like anything except for biology. तो Abdul Moiz, how would you say how did you do physics? What were your resources and what kind of questions ended up showing on the exam? बहुत ज़्यादा calculation करनी पड़ी थी, numericals आए थे. What ended up showing? Please shed some light on it. फिजिक्स में सबसे पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक से ही रीड कर लिया, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स ले लिए, जो नहीं समझ आए यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स ले लिए। उसके बाद जो डेरिवेशंस होती हैं बुक में, उसमें हम लोग यूजुअली एफएससी में जो है फाइनल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं हर जगह, मगर एमडीकैट में डेरिवेशन के मिड में एक फार्मूला आ रहा होता है जो कभी यूज हो रहा होता है न्यूमेरिकल्स में। और इस दफा के एमडीकैट में काफी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिनमें उसी तरह के फार्मूलाज यूज हो रहे थे, और डेरिवेशंस काफी ज्यादा इस दफा आई थी, न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आए थे इस दफा। और फिजिक्स के लिए यही है कि अच्छी तरह इन फार्मूलाज बंदे को याद हों, कांस्टेंट्स की वैल्यूज बहुत जरूरी होती हैं और यूनिट्स बहुत जरूरी होते हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की जरूरत है वो फिजिक्स ही है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं इसमें। मतलब एक फॉर्मूला से 10 किस्म के सवाल बना सकता है, तो उसके लिए। और उसके अलावा इसके अंदर ग्राफ्स को हम लोग नॉर्मली इतनी अहमियत नहीं देते, मगर एमडीकैट के लिए जो बुक में ग्राफ बने होते हैं, स्लोप क्या है और ये वो सब कुछ वो बहुत जरूरी होता है। और सवाल भी इसी तरह के आए थे फिजिक्स में, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही थे और टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे, तो इसीलिए एंड के लिए रखे हुए थे। तो आपके रिसोर्सेज, व्हाट वाज योर मेजर रिसोर्स? आपने टेक्स्ट बुक यूज की फॉर द न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस के लिए? टेक्स्ट बुक से मैंने मेन कॉन्सेप्ट्स लिए और डेरिवेशंस और उनके फॉर्मूलाज देख लिए। उसके बाद जब मैं समझता था कि हाँ ये चैप्टर कवर हो गया, उसके बाद मैं किसी भी प्रिपरेशन बुक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करता था। उसके बाद जब उसके मैं आंसर्स टैली करता था, जो गलत होते थे वो मैं सर्कल मार्क आउट कर लेता था, वो कैसे सॉल्व हुए हैं। उसके अलावा एक यूट्यूब पे चैनल है फिजिक्स इन सेकंड्स, तो वो आपको कंसाइज वीडियो होती है बहुत, और डिफरेंट किस्म के एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाते हैं, तो उससे काफी एक हम लोगों को नए नए आइडियाज मिलते हैं कि हाँ ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि एमडीकैट में आंसर लाना मसला नहीं है, कम टाइम में आंसर लाना मसला होता है फिजिक्स के लिए, तो वो सही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें तो उस तरह हो सकता है वो, बहुत और वो अच्छी प्रैक्टिस से ही strategy है आपकी फिजिक्स बनेगा। की। I love it. I think people will love it too because I think यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, people are most worried about कि उसमें कैलकुलेशंस करनी होंगी, डेरिवेशंस करनी होंगी। Okay, now let's talk about the forgotten subjects, I call them, English and logical reasoning. तो हमारे टाइम पे there were no questions on logical reasoning. There were, I guess, 10 questions on English only back in 2019. So let's talk about both of them one by one. So Mariam, I want to ask you about English के what were the questions that ended up showing on the exam, और आपके क्या resources थे, and what did you do? Like, can you sum it up? So basically, English K, there are 18 MCQs that Okay. are like pretty much normal. They're not too much or too less. So first of all, I would say they are very basic English that comes in MDCAT. It's not like a बहुत advanced आएगी. There, it's very basic and you can easily do that. Also, go for the simple rules we have been studying through like 7 and 8 class about nouns and verbs, and also a sentence construction. One thing I would like to advise everyone would be go for improving your vocabulary and go for learning new words, phrases, and idioms that will help you a lot. And Abdul Moiz, can you shed some light on logical reasoning? What kind of questions showed up and how did you prepare for them, and how much time out of your preparation did you give to the logical reasoning questions? ऑनेस्टली मैंने लॉजिकल रीजनिंग पे इतना टाइम नहीं दिया था वैसे, मगर लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक सवाल ही आते हैं, मतलब कॉमन सेंस वाले ही होते हैं वो, उन पे थोड़ा टाइम लगता है, सोचो और सॉल्व हो जाते हैं वो। मतलब इस किस्म के सवाल आएंगे कि मिसाल के तौर पे एक टाउन में डिजीज
डिजीज है, तो वो डिजीज हल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले सकती है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो सबसे बेहतर है आपने वो सिलेक्ट करना है। अब मेरा नहीं ख्याल वो किसी प्रैक्टिस बुक में आपको उस चीज से आइडिया मिलता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक न्यू सवाल है, कहीं से भी आ जाए आपको नहीं पता, तो कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं है कि इधर से आएगा ये सवाल या इधर से आएगा। तो यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस बुक, मैंने कुछ यूज की थी मगर इतना उनसे फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल डिफरेंट आए क्वेश्चन। और इसके अलावा जो है इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे सबसेट है कि अगर एक बंदा फुटबॉल खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, दूसरा बैडमिंटन और फुटबॉल खेलता है, तीसरा हॉकी खेलता है, तो चौथा क्या क्या खेलता है। मतलब इस तरह सबसेट और इंटरसेक्शन जो हम पढ़ते थे, यूनियन, वो वाली चीजें जो है वो सवाल में पेश कर देते हैं। बाकी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, और हैं भी सिर्फ 6 सवाल, तो कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, वो हो जाते हैं। Okay, so I think we've summed up the resources. You guys did a really good job explaining all of them. और I feel कि अगर आपको अपने resource पता चल जाए तो half of your work is done. You have cleared half of the MDCAT if you have figured out your resources. So I'll like to hand over to Samir now. On to you. So guys, that was some great resources from you all, and I think ये जो अब्दुल मोइज ने फिजिक्स वाला पार्ट elaborate किया, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एरिया होता है कि उसमें सबको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, तो या that would really help them. And I would like to ask you Moiz कि आपने अपने टाइम पे like what was your schedule during your MDCAT period, रिविजन से पहले what would you use to follow for revision? मतलब मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, अब 2 हफ्ते रह गए थे तकरीबन एमडीकेट एग्जाम में। तो उसमें ये करता था कि दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक्स की रीडिंग करता था, और बुक ऐसे ले ली जो लाइंस मुझे पता है जो आती हैं, मतलब पूरे पेज में उन पे पेंसिल से कट लगा दिया। पूरे पेज पे आपके पास 3 से 4 लाइनें या कोई एक फॉर्मूला स्पेसिफिक रह जाता था। तो ऐसे जब आप पूरी बुक को एक दफा कर लेते थे, जब आप नेक्स्ट टाइम करते थे तो आप 2 घंटे लगा के पूरी बुक कर सकते थे, और सिर्फ वो पोर्शंस जो जो आपके वीक हैं। तो इस तरह किए, और एफएलपीज फुल लेंथ पेपर जो है मैंने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए, मतलब 3-3 4-4 भी एक दिन में कर लेता था। वैसे 210 मिनट्स का होता है, मैं 200 मिनट्स का टाइमर लगा के तो सॉल्व कर लेता था। तो अराउंड उसी तरह का टाइम मुझे उसी में मिला, तकरीबन 200 मिनट में ही मैंने एमडीकेट में सॉल्व कर लिया था। तो आखिरी टाइम पे यही होता है कि बस जो आपके वीक हैं पॉइंट्स वो कर लो, और जो रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, जैसे फलां सॉल्ट है उसको फ्लेम पे रखेंगे कौन सा कलर देगा, तो ये चीजें याद नहीं रहती। ये भी आप एक दिन पहले 2 दिन पहले ये वाली चीजें कर लें, और कॉन्स्टेंट्स को देख लें, और मतलब पूरा तो दोबारा नहीं किया जा सकता, तो आखिरी दिन में यही किया जा सकता है, आखिरी टाइम में। I would totally agree on that. मैंने भी अपने टाइम पे यही फॉलो किया था मोस्टली, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं वो करें. एंड आई वुड लाइक टू आस्क मरियम के, मरियम, व्हाट डू यू थिंक के व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली मेक ड्यूरिंग देयर एमडीकेट, या व्हाट वुड यू सजेस्ट? So I think the biggest mistake someone can do MDCAT में, that would be rushing and like just trying to do things really quick, and so they just miss out questions. They just don't read the not in the last of the sentence, or they can even like forget ke acha, they forget that there was a not in the sentence or something like that. Also another mistake that usually do people, that ke OMR sheet में they miss the slot, or so जब वो end तक पहुंचते हैं, so it's like all jumbled up. Then for Energy MDCAT is preparation, wasted. yeah, and for MDCAT preparation, I would say कि जब वो prepare कर रहे होते हैं, they go for the easiest thing, and so sometimes they just think कि जो मुश्किल है वो नहीं आएगा, but it ends up coming in the paper, और ये एक mistake होती है. And another thing that I would say कि overconfidence. Some of the students can get overconfident. They don't give the importance or the that should be given to the exam. So yeah. Okay, and one last question from Moiz, like हम पेपर अटेम्प्ट करने वाले जो उस दिन होता है, what would you suggest any ideas like how to attempt the paper, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, and any tips and tricks? अच्छा, तो ये मैंने उधर जाके डिसाइड किया कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। तो उसका ये तरीका था मेरा कि 3.5 घंटे थे मेरे पास, और तकरीबन पहले 1.5 घंटे में आप कह लें कि मैंने 130 एमसीक्यूज कर लिए थे। वो इस तरह के स्टार्ट किया टॉप से, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब गो थ्रू करता गया। ऐसे सवाल जो आते हैं कि आप एक दफा पढ़ें और आप कर सकते हैं उनको, तो आप वो करते जाएं, और नंबर जरूर टैली करते रहें ओएमआर शीट में ना, ताकि आपसे कोई मिस ना हो या आगे पीछे ना हो जाए। तो आप जब इजी वाले कर लेते हैं, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ 130 कर लिया, अब 70 रह गए और 2.5 घंटे है मेरे पास या 2 घंटे हैं। तो बंदा फिर जो सवाल न्यूमेरिकल सोचता है, फिर
ठंडे दिमाग से सोचता है। जब ठंडे दिमाग से सोचता है तो बेहतर सॉल्व कर सकता है उस सवाल को। अगर हम एक सवाल पे आके फंस जाएंगे कि नहीं ये करूंगा फिर आगे जाऊंगा, तो और वो नहीं आ रहा हो, फिर इस तरह काम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले बायो में मोस्टली ऐसे ही सवाल होते हैं, बायो कंप्लीट हो जाता है तकरीबन। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो चंद न्यूमेरिकल हैं या रिएक्शंस वाले हैं या ऐसे कुछ जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे वो छोड़ देते हैं, इंग्लिश कर लें। और लॉजिकल रीजनिंग मेरे ख्याल में बहुत टाइम लेता है, तो इस वजह से लॉजिकल रीजनिंग को भी आखिरी के लिए छोड़ दें। एक दफा जब आप गो थ्रू कर लेंगे, सेकंड टाइम आप वो क्वेश्चंस करें जो आपको पता है कि आप कंफर्म है कि मैं इस पे टाइम लगाऊंगा और सही आंसर मिल जाएगा मुझे, तो आप वो वाले करें पहले। उसके बाद आखिरी का जो 1 घंटा है वो जो आपको सवाल नहीं आते तो उन पे आप तुक्के मार लें बेशक, या जिस तरह आप कर सकते हैं वो उस तरह कर लें, और लॉजिकल रीजनिंग कर लें उससे पहले। Okay, so that's great. इसके अलावा I would say कि one last thing that you would change कि अगर आप दोबारा से अगर prepare कर रहे होते, this question is for both of you. So Mariam, what do you? So if I was to reappear in MDCAT, first thing that I would like skip would be laziness or scrolling through the cat videos and social media. I would definitely not do that this time. Those are so Or addicting, I know. also, I guess I would go for doing more of mock papers, and so that they can help me deal with the test anxiety. And I guess that I should be doing more MCQ practice, because there would be some questions that would be not in the books, but from the past papers and stuff. So I would do maximum of like the mock revisions and the past paper things. And yeah, and also I would still give some time to my cat videos. Okay, so Abdul Moiz, you would like to add something to that? अगर मैं दोबारा तैयारी करता तो मैं इंग्लिश पे जरूर फोकस करता, क्योंकि 18 में से 9 नंबर मैंने लिए इंग्लिश में, और सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही मेरे गए। तो इंग्लिश को लाइट नहीं लेना जिसकी वीक है, तो इंग्लिश पे फोकस करता। और दूसरी बात ये कि रात को जब 2 बजे सोऊंगा तो सुबह 12 बजे ही उठूंगा, तो उससे भी काफी टाइम जाया हो जाता है दिन का। तो जब टाइम जाया हो जाता है फिर बहुत सी चीजें चॉइस पे छोड़ के हम लोग एमडी कैट में जा रहे होते हैं कि बस चॉइस पे छोड़ देते हैं अभी। तो बस यही है। और हाँ, सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है मैंने बलूचिस्तान बोर्ड से की थी। कुछ कुछ मैंने देखी थी पंजाब बोर्ड से, मगर पूरा नहीं किया था। और काफी एमसीक्यूज ऐसे थे जो पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक से आए थे। तो मैं कहूंगा कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक से जरूर देख लें एक दफा, तो काफी, क्योंकि वो डिटेल्ड है और हमारी काफी ब्रीफ से लिखी हुई है बुक। Okay, so that was a very nice insight. So Aisha, would you like to take over? Sure, you guys did an incredible job और I hope कि आप जैसे बहुत सारे students की आप लोगों ने आज help की है and you both will make great doctors inshallah. I really hope so. अच्छा, for something from my own experience, I'd like to say to the viewers, just try to keep your resources as minimal as possible, because you cannot do everything, but whatever you are doing, do that the best. And also don't overdo, don't overkill. Take care of your health as well. You can't get sick on your MDCAT. You cannot, I'm just telling you. And just don't overthink about it and you'll be good to go inshallah. And whenever you feel down, just think about how good you look in that white coat. So you can reach out on any question in the comments or any of our socials. Thank you so much to both of you. Samir, do you want to add something to that? So I would just like to add that stay consistent, because being consistent is the key in the end. Hard work ही जो है वो pay off करता है, and यही है कि अपने आप को उस white coat में देखें तो you would work hard for that, and yeah, that's all. Thank you so much for joining in and stay tuned to Merangle Pre-Med for more such videos. Allah Hafiz.